Welcome to SUI online chemistry classes for class 12 English medium. After the method of preparation of alcohol and also chemical property, today I am going to start the physical properties of alcohol like solubility of alcohol, acidity of alcohol. Okay, so alcohols are soluble in water or not? स्टूडेंट सोलिबिलिटी अगर हमें किसी की डिफाइन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल देन दैट organic compound is soluble in water. If organic compound is not capable to form intermolecular H bonding with water molecule, that organic compound is insoluble in water. ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी वाटर पे डिसाइड करने के लिए हमें क्या जज करना है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ये अगर वो कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बना रहा है, देन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, इफ नॉट देन इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। सो आप लोग सोचिए, इज अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर और नॉट? सी, alcohol is ROH. Hydrogen is attached with electronegative oxygen atom and it have tendency to attach other electronegative atom of water molecule. So this is the kind of intermolecular H bonding. Here it is partial negative and it is partial positive. So alcohol able to form hydrogen bonding with water molecules, so alcohols are soluble in water. Okay, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? This is the H bond. क्वेश्चन क्या पूछते हैं? लोअर मेंबर एल्कोहल्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? इज अल्कोहल are soluble in water or not? So answer क्या हो गया? Because alcohols form intermolecular hydrogen bonding with water molecules, so alcohols are soluble in water. Okay. Second question क्या पूछेंगे? Second question is explain कीजिए why lower member alcohol is are more soluble in water as compared to higher member alcohol. It means like methyl alcohol and ethyl alcohol, CH3OH and also C2H5OH is more soluble in water as compared to pentyl alcohol. For example, CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4 and 5 OH. So question क्या बनेगा? Question है lower member alcohols are more soluble in water as compared to higher member alcohol. ये question अभी और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी अराइज होगा। इसका भी आंसर कहाँ से निकलेंगे? इफ जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो R पार्ट बढ़ता जाता है। हियर R is CH3, here R is C2H5, that is CH3 CH2, here R is CH3 CH2 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 है, इतना बड़ा R पार्ट है। So as increases the size of R part, as increases the length of alkene chain, solubility in water decreases. Why? Because hydrocarbon part is insoluble in water due to their hydrophobic nature. And alcohol तो सब में 1 OH है, and जो स्पीशीज वाटर में डिसॉल्व हो जाती है उसको बोलते हैं, उसका हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। ओके, जो इनसोल्यूबल होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। सो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अल्कोहल OH ग्रुप इज सेम इन तीनों ग्रुप में, इन तीनों कंपाउंड में OH ग्रुप क्या है? सेम है। डिफरेंट क्या है? साइज ऑफ द अल्किल ग्रुप। As increases the size of the alkyl group, their hydrophobic nature increases. As a result, their solubility in water also decreases. Okay. So answer question क्या था? As increases the molecular mass of alcohol, decreases their solubility in water. Explain करना था कि lower member alcohols are more soluble as compared to higher member alcohol. Answer क्या बना इसका? Because in higher member alcohol या फिर as increases the length of the alkyl chain, molecular mass of the alcohol, or also say that as increases the molecular mass of alkyl group, जैसे से R group बढ़ता जाएगा, their solubility in water decreases due to their hydrophobic nature. Okay, let's continue next type of question. Third type of question ये है alcohol and water
में which one is more acidic in nature, either alcohol or water. Which one is more acidic in nature? इसका हम लोग एसिडिक नेचर डिफाइन करने जा रहे हैं। एसिडिक नेचर डिफाइन करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। Acids are those compounds which give H plus ion in their aqueous solution. अगर हम aqueous solution it means organic compounds में water mix करेंगे, then that combination is known as aqueous solution of that component. If aqueous solution of that component gives H plus ion, it means that component ionized to give H plus ion, that is known as acid. Okay. H plus जाने के बाद एक नेगेटिव स्पीशीज भी बनती है। अगर वो नेगेटिव स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, देन दैट जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उतना ही ज्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई करेंगे। H प्लस निकल जाने के बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, द नेगेटिव चार्ज present on the negative species as stabilize as increases their acidic strength of that acid. Okay, negative part जितना ज़्यादा stabilized होगा वो acid का जो acidic strength है उतना ही ज़्यादा होगा। Okay, डिपेंड कैसे करेंगे कि which one is more stabilized, negative charge कौन किस में ज़्यादा कैसे stabilize होता है। स्टेबलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का क्या डिसाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेजोनेंस प्रेजेंट हो इन दैट नेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव स्पीशीज यानी कि नेगेटिव चार्ज आपका लोकलाइज्ड ना होके डीलोकलाइज्ड हो ऑल ओवर द नेगेटिव स्पीशीज, देन दैट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड। इफ नेगेटिव चार्ज अटैच्ड टू एनी पॉजिटिव सेंटर, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव मिल रहा हो देन इट इज स्टेबलाइज्ड। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द बल्की एटम, अगर किसी बल्की एटम पे वो नेगेटिव चार्ज है, इट मींस वो नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल रहा हो, कहीं पे कांस्टेंट बिल्कुल मतलब अगर मैं बोलूं F नेगेटिव एंड I नेगेटिव, which one in which negative charge is more stabilized, so answer is I negative because the size of the I negative is greater than the F negative. Okay, तो स्टेबलाइजेशन के भी तीन तरीके मैंने आपको बताए। फर्स्ट नेगेटिव को पॉजिटिव मिले देन इट इज स्टेबलाइज्ड। इफ रेजोनेंस इज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड ना होके डीलोकलाइज्ड हो ऑल ओवर द स्पीशीज। एंड थर्ड वन है इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द बल्की एटम, बड़े से एटम पे प्रेजेंट हो देन दैट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड। तो स्टेबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट सीख गए। तीन प्रोसेस मैंने आपको बताया, नेगेटिव चार्ज कैसे कैसे स्टेबलाइज होता है, and as increases the stabilization of that negative charge increases the acidic strength of that acid। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन इज व्हिच वन इज मोर एसिडिक, वाटर और अल्कोहल। अल्कोहल इज एम्फोटेरिक होता है बट इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए अल्कोहल में अगर हम वाटर डालते हैं इट मींस इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं देन इट गिव RO- plus H plus, it give H plus ion and also alkoxide ion। इसका नेम क्या है? alkoxide ion, alkoxide ion। एंड जब वाटर का आप डिसोसिएशन करोगे, वाटर तो एक्वस ही, इसको हम ब्रेक करेंगे दैट इट गिव H plus and OH minus ion, it give hydroxide ion and it give alkoxide ion। so first of all जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि व्हिच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पानी डालेंगे, दैट मींस उसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे। एक्वा सॉल्यूशन तैयार करने के बाद रिएक्शन लिखेंगे डिसोसिएशन की, कि वो H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज कौन सी बन रही है। ओके, जैसे यहाँ पे अल्कोहल को मैंने डिसोशिएट किया, इट डिसोशिएट इनटू H+ आयन अल्कोक्साइड आयन एंड इट डिसोशिएट इनटू हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयन। सो अब हम देखेंगे कि which negative species is more stable, either hydroxide ion or alkoxide ion। Let's see student, first of all OH minus, it is hydroxide ion and it is alkoxide ion। okay, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबलाइजेशन की कंडीशन क्या थी? नेगेटिव अटैच्ड टू पॉजिटिव सेंटर जो यहाँ पे एब्सेंट है, नेगेटिव को कोई भी कहीं से भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है बोथ केसेस। ओके, नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन का कंडीशन क्या था कि आपको रेजोनेंस मिलना चाहिए, नेगेटिव लोकलाइज ना होकर डीलोकलाइज होना चाहिए, पूरे मॉलिक्यूल में उसको घूमना चाहिए, वो भी यहाँ पे एब्सेंट इन बोथ केसेस बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है और वो डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है, लोकलाइज्ड एट ऑक्सीजन एटम। सो यहाँ पर क्या डिफाइन हो रहा है कि बोथ आर बहुत ज्यादा, दोनों ही बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं, बट इन एल्कोक्साइड आयन R नेगेटिव, ये जो R पार्ट है दैट इज अल्किल ग्रुप,
इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टूडेंट एल्किल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिस सेंटर से भी जुड़ते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। सो इफ नेगेटिव को और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, नेगेटिव अटैच्ड विद नेगेटिव सेंटर, एल्किल ग्रुप क्या है? नेगेटिव देता है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देन इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दैट माइनस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड नहीं होकर क्या हो रहा है? डीस्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो इन दोनों में विच वन इज मोर स्टेबल? अगर स्टेबलाइजेशन देखें तो दोनों ही स्टेबल नहीं है, बिकॉज वो सारी कंडीशन उसमें फॉलो नहीं हो रही है। बट अगर कंपेयर की बात करें कि विच वन इज स्टेबल, देन हाइड्रोक्साइड आयन इज स्टेबल देन द एल्कोक्साइड आयन, बिकॉज इन द एल्कोक्साइड आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप this negative charge is destabilized because electron donating group increases the electron density at that oxygen atom. Okay, so which one is more acidic in nature? So answer is water is more acidic than alcohol. Question क्या पूछेंगे? Explain reason why the acidic strength of alcohol is less than water. So इसका आंसर यही होगा, because आप dissociate करके दिखा देंगे and बताएंगे because in alkoxide ion the negative charge is destabilized due to the presence of electron donating alkyl group. That's why therefore alcohol the acidic strength of alcohol is less than the water. आई होप यू अंडरस्टैंड। यही कॉन्सेप्ट हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपेयर में कर सकते हैं कि विच वन इज मोर एसिडिक। ओके, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन कीजिए व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो इसका भी आंसर हमको यहीं से, उसमें तो पहले ही बता दिया गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। आंसर आपको यहीं से फाइंड आउट करना है, उसको ब्रेक कर देंगे आपको सोल्यूशन बना करके। H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज बनती है उसमें नेगेटिव स्पीशीज को देखना है विच वन इज स्टेबलाइज्ड। जो नेगेटिव स्पीशीज स्टेबलाइज्ड होगी वो जिससे भी निकल रहा होगा वो एसिड इज हैव मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, okay, now the next question is which one is, compare कर लेते हैं, which one is more acidic in nature, either alcohol or phenol? It is phenol and it is alcohol. alcohol का पूरा केस हम लोग समझ चुके हैं, डिसोशिएट करके देख लिया जाए। alcohol is dissociate into their aqueous solution as RO- and H+. It gives H+ ion and the alkoxide ion. What about phenol? Aqueous solution of phenol gives H+ ion and phenoxide ion. This ion is known as phenoxide ion, and this ion is known as alkoxide ion. Alkoxide ion. This ion is known as alkoxide ion and this ion is known as phenoxide ion. अब डिसाइड कीजिए which one is more stable. जो स्टेबल होगा देन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसका भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं इस प्रीवियस क्वेश्चन में। एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता है बिकॉज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ा है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीजेस बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग R group, then that negative charge is destabilized. Okay, so this ion is not stabilized. ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, in phenoxide ion resonance is present. Let's see. Okay, now here this carbon have 4 bond 1 2 3 4। जब फिफ्थ अप्रोच मिलेगा, ये सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, आपका कौन सा रिएक्टिव ज्यादा होता है? पाई। पाई फटाफट से मूव कर जाएगा बिकॉज कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड दो, देन हेड पे नेगेटिव टेल पे पॉजिटिव, हेड आया है सेंटर पे, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा। इन दोनों बॉन्ड को कुछ भी नहीं हुआ। इस नेगेटिव चार्ज को देख के ये बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्फ्लुएंस होंगे एंड इन्फ्लुएंस होकर कैसे ब्रेक करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है तो प्लस माइनस बॉन्ड बन जाए। सो ऐसे मूव कर जाएंगे, इससे दूर मूव करेंगे। ओके, देन यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड दो, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, देन ये आया हेड यहाँ पे सेंटर पे नेगेटिव एंड दिस। ओके,
देन इस नेगेटिव चार्ज को देख के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से मूव होंगे या प्लस माइनस बॉन्ड बन जाए, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O एंड इसको कुछ भी ये ऐसे बन जाएगा। These are the resonating structures of the phenoxide ion। तो देखा हम लोगों ने कि रेजोनेंस के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज ना होके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब मूविंग ऑफ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है। सो एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल because due to the presence of resonance, negative charge is destabilized throughout the negative phenoxide and throughout the negative species. So which one is more acidic in nature? Answer is phenol is more acidic than alcohol because phenoxide ion is more stable than the alkoxide ion. In alkoxide ion, negative charge is destabilized by electron donating R group, and in phenoxide ion negative charge is stabilized by the resonance और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके हम लोग बना देंगे। सो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम लोग फिनॉल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of phenol. What is phenol? That is C6H5OH. It is the hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon. बेंजीन में से एक H रिप्लेस करके OH को प्लेस किया गया है, so it is the hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon को क्या बोलते हैं? It is phenol C6H5OH। कैसे कैसे प्रोसेस में इसको बनाते हैं? सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड इज बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। What is benzene sulfonic acid? That is C6H5SO3H. Its name is benzene sulfonic acid. Now, benzene sulfonic acid, that is C6H5SO3H, react with NaOH to give, here water is removed and SO3Na is formed. Now it further react with NaOH. Here arrow के ऊपर लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यहाँ पे रिएक्ट करता है, NaOH निकलता है, वाटर निकलता है, यहाँ पे ONA दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। वो सोडियम फिनॉक्साइड आयन था, उस नेगेटिव से Na आके अटैच हो गया, दैट इज नेम क्या पड़ गया? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फिर रिएक्शन हम H+ की प्रेजेंस में HOH करा देंगे, NaOH निकल जाएगा एंड फिनॉल इज फॉर्म्ड। क्या बन गया बच्चों? स्टूडेंट ये फिनॉल बन गया। फर्स्ट मेथड लैब मेथड है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक रिएक्ट्स विद NaOH, देन इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोलिसिस in the presence of acid, it gives phenol. Okay, now move to next process. By ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ऐसे किया, यहाँ पे ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है। प्रायोरिटी किसको दोगे आप? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड COH के ऑर्थो पे OH ग्रुप प्लेस्ड है, इसका प्रीफिक्स बनाना है। OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? ऑर्थो पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी, एंड क्या है ये? बेंजोइक एसिड। Orthohydroxy benzoic acid is treated with soda lime. It is the example of decarboxylation reaction. Okay. इसको हटाना है मुझे, फिनॉल तो बन जाएगा, इसको बस हटा दो किसी भी करके। तो COOH group is removed by decarboxylation reaction. In this reaction, soda lime is taken, NaOH plus CaO is heated, then Na2CO3 plus water निकल जाता है, मीथेन का जैसा फॉर्मेशन था, एंड क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे? फिनॉल। क्या क्या रिप्लेस होगा यहाँ पे? Na2CO3 Na2CO3। ओके, 2 molecule of NaOH यहाँ पे प्लेस करेंगे। So this is second method by
orthohydroxybenzoic acid, and it is the example of decarboxylation reaction. Now third method is Dawes process. It is important process and it is the industrial process for the preparation of phenol. Dawes process. Second name of this process is by chlorobenzene, haloarine or chlorobenzene. Haloarine में क्या लेंगे? Chlorobenzene. Okay. Chlorobenzene, that is Cl, is treated with NaOH. Okay. It gives ONA, that is sodium phenoxide, and after the hydrolysis in the presence of H plus ion, it gives phenol. This reaction is take place at 623 Kelvin temperature at high pressure. Okay. So this is the process, is industrial process for the preparation of phenol, that is named as Dawes process and also known as formed by chlorobenzene. Okay, this is chlorobenzene. So this is all about the method of preparation of phenol. Okay. Let's move to physical properties of phenol. Student, just think about it. Which one is more soluble in water, either alcohol or phenol? ROH or C6H5OH. So due to the presence of aryl ring, that is C6H5, it is hydrophobic in nature because it is hydrocarbon. So phenols are less soluble than alcohols because due to the presence of phenyl ring or also known as aryl ring. Okay. Is phenol is soluble in water? Yes, it is soluble in water because it can form intermolecular hydrogen bonding with water molecule. Okay student, so ये सारे क्वेश्चंस हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.